Hello. Let's start with a new topic in elements, compounds and mixtures, that is separation technique. Okay. Previously we have already discussed what are elements, what are compounds and what are mixtures. Now with the help of different separation techniques, we are going to separate different types of mixtures. Okay, so let's start with the topic. Welcome to Science at Click, and we are going to discuss separation techniques today. First separation technique is hand picking. When your mixture is having a visible difference, visibly you can identify the constituents of the mixture. In that case, you can separate the mixture by simply hand picking method. So hand picking is the first methodology in separation technique. We'll go from very easy separation technique to scientific and laboratory techniques. Okay, so first one is hand picking. Whatever is impurity, whatever impurity is there in the rice can be removed with the help of hand. You can separate grapes according to the color. So either the particle size, majorly the visual difference, the white and black color of particles, the green and black color of the grapes, visual difference is important in hand picking process. Okay, the next is threshing. Threshing is a regular methodology in farming, in agriculture, where grapes are separated from the crop. They thresh it on the stone, and what happens, the heavier grain particles fall straight down while the lighter hay particle move a little bit away, and in this way grains are separated from the crop. So this is known as threshing. This is done on the heaviness or the particle size of the components of the mixture. The third step is also on the basis of your particle size, because the heavier the particle, they will experience more gravitational force, because we know that it depends upon mass. So gravitational force is more in case of grains because they are heavier. The other particles, the husk or the hay particles, will move away from the grains because they are lighter, so they will be carried away by the wind easily. So they will carried away easily to some distance, and there will be the heap of impure material and pure grains. As they are heavier, they will fall down directly. So this method is known as winnowing. So first was our this thing, hand picking. Second was threshing. Third is winnowing. Then fourth is sieving. Okay, we sieve the things with the help of sieve. Okay, so at home mama must be doing this sieving method regularly. During making of tea, so tea leaves are separated, or during whatever is the recipe for rava cake or anything. Okay, so for that also, and in constructions also, sand is sieved to get a fine sand for construction methodology. So this is done on the basis of particle size. Here it was heaviness of the particle, means mass of particle. Here it is size of particle, so that only finer particles will be collected over here, and the bigger particles will remain on the front side only, so you will get fine sand. So particle size is the important property of constituent. If you want to separate the mixture which have different particle size of constituents, in that case we'll be using this methodology, this which is known as sieving. The next is filtration. Okay, when your impure material or whenever your solution is having what?
your solution is having some impurities which you can filter off. क्यों filter off कर पा रहे हो? क्योंकि वो टी लीव्स का जो मैंने एग्जांपल दिया था, दैट इज एक्चुअली फिल्ट्रेशन, बट ठीक है क्योंकि वो इनसोल्यूबल मटेरियल है. जब मिक्सचर को आप वाटर एंड सैंड का मिक्सचर है या फिर वाटर एंड सॉइल का मिक्सचर है, इन दैट केस दिस सैंड और सॉइल पार्टिकल्स आर insoluble in water, so these insoluble particles can be filtered off by using filter paper in a funnel, so that you will get a pure filtrate, a pure solvent, that is water over here. Pure in the case it is not free from germs, it is free from whatever the solid impurity present in it. So you can, the residue will be here, the soil or sand particles will remain on the filter paper, while you will get pure liquid over here. Okay, this is the methodology, this is the process in which proper in laboratory we carry out this process. On a stand we attach funnel, to that funnel we keep a filter paper in a cone manner, okay, empty beaker so that we can collect the filtrate, and we pour the muddy solution or sand solution थ्रू द ग्लास रॉड. ऐसे ग्लास रॉड का एकदम से पोर नहीं करते हम लोग फिल्टर पेपर पे, क्योंकि वो वेट होके फट सकता है, इसलिए स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय टचिंग टू द वॉल ऑफ अ ग्लास रॉड वी पोर सॉल्यूशन इन इट. सो दिस इज व्हाट फिल्ट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन. ओके, फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड रहते हैं आपके, तो वो आप फिल्टर ऑफ कर सकते हैं. सोल्यूबल पार्टिकल्स नहीं. सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन फिल्टर करते हो तो वो फिल्टर पेपर में से ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो सीव जो है फिल्टर पेपर का, वो जो पोर साइज है फिल्टर पेपर का, वो बहुत छोटा है, लेकिन आपके पार्टिकल्स उससे भी छोटे, सो वो निकल जाएंगे आपके सोल्यूशन में. लेकिन हेवी पार्टिकल्स जैसे सैंड के पार्टिकल्स है, क्ले के पार्टिकल्स है, ये आप फिल्टर कर सकते हैं. लेकिन जो काफ़ी हैवी पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स या फिर स्टोन्स या फिर आपका थोड़ा बड़ा साइज वाला जो सैंड होता है, दैट सेटल डाउन एट द बॉटम. Okay, so when it settles down at the bottom, that process is known as sedimentation. It sediments, it settles down, it precipitates. Okay, and then you can pour off the upper layer of the liquid into another beaker, so you will get clear water over here, and precipitate or the sediment will remain in the another beaker. Then you can again यू कैन फिल्टर दिस, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स तो जाएंगे क्ले या सैंड के इधर, तो एट दैट टाइम द रिमेनिंग इम्प्योर वाटर, दिस वाटर कैन बी अगेन फिल्टर्ड, और यू कैन सिंपली stir it and filter it, or you can make it sediment, decant it into another beaker, then filter it. Okay, so any methodology you can apply, so both the ways you can carry out. लेकिन sedimentation तभी होगा जब आपके particles थोड़े heavy है, तभी वो sediment होंगे, तभी वो settle down होंगे. At that time you can do it by using method sedimentation and decantation. लेकिन clay के particles इतने अच्छे settle नहीं होते, कुछ settle होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ suspended रहते हैं. At that time you have to use filtration method. Okay, so which method you are going to use depends upon what mixture you want to separate. Then next is magnetic separation. कोई भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, आयन है, कोबाल्ट है, निकेल है, ऐसा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स हो गया है, इन दैट केस दिस मैग्नेटिक सेपरेशन मेथोडोलॉजी कैन बी यूज्ड. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द मैग्नेट, जस्ट swirl it in the mixture, all the magnetic substances will stick to the magnet, and you can remove the magnet so that magnetic substance will get removed and other things will remain in the dish. This methodology is has a very
वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन की गार्बेज में से जो जब हम लोग आयरन के मटेरियल या फिर कोबाल्ट निकेल के मटेरियल अलग करना चाहते हैं फॉर रिसाइकलिंग प्रोसेस, एट दैट टाइम मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज. ओके, बड़े से क्रेन को मैग्नेट लगा के फिर उठाते हैं ऐसे कचरे में से सारे मैग्नेटिक टिन या फिर मेटल्स का मतलब आयरन के कुछ मटेरियल्स अलग करते हैं, फिर उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं. ओके, सो दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन. द नेक्स्ट इज sublimation. I'll write it over here. What is sublimation? Sublimation is the process in which your solid gets directly converted into gas without intermediate liquid state. जनरली क्या होता है, हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं, वो मेल्ट होता है, वो लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो गैस होता है. ओके, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट शो नहीं करते, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाते हैं, उनको बोलते हैं हम सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस. जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नैफ्थलीन बॉल्स है, ये सारे क्या है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंसेस है. ऐसे अगर सब्सटेंसेस मिक्सचर में आ जाए, मिक्स हो जाए, इम्प्योर हो जाए, तो उनको सेपरेट करने के लिए वी यूज दिस sublimation process. अभी अमोनियम क्लोराइड इज अ वाइट कलर कंपाउंड, योर सॉल्ट इज ऑल्सो वाइट कलर कंपाउंड. इसका मिक्सचर है तो यू कैन नॉट हैंड पिक इट. ओके, सो easy way what you can do, you just heat the mixture, ammonium chloride will vaporize and will crystallize over here. You take out the funnel, in funnel you have solid ammonium chloride, in this dish, china dish, you have solid salt. Okay, so in this way you can separate the mixture. Sublimating substances, mixture having sublimating substances. Okay, so this is the next technique, that is sublimation. Next to it is separation by separating funnel. सेपरेटिंग, हम लोगों ने फिल्ट्रेशन में एक फनल देखा था जो कि सिंपली ये शेप का है. ओके, ये शेप का फनल वी हैव सीन इन filtration technology. This is another funnel known as your separating funnel. ये ग्लास का या प्लास्टिक का भी होता है, नीचे एक नॉब होता है. So this method is used for immiscible liquids. जो दो लिक्विड्स मैंने मिक्सचर वाले वीडियो में भी बताया कि two liquids which are not soluble in each other, which do not mix with each other, are known as इमिसिबल लिक्विड्स. तो ऐसे जब मिक्सचर्स फॉर्म होते हैं, ऑयल या वाटर मिक्स हो गया या ऑयल या कौन सा भी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अगर मिक्स हो जाता है, इन दैट केस इफ़ यू वांट टू सेपरेट दिस ऑयल एंड solution separately, in that case separating funnel is used. यहाँ पे इसको नॉब होता है और ये नॉब आप जब ओपन करते हो तो पहले क्या नीचे आएगा, आपका ये सोल्यूशन या वाटर बाहर निकलेगा विच इज़ कलेक्टेड इन द बीकर, एंड देन जैसे ही ये ऑयल नॉब की तरफ आता है, वेरी क्लोज टू नॉब, यू क्लोज इट सो दैट वाटर इज इन योर बीकर एंड ऑयल रिमेन्स इन द funnel. In this way your heterogeneous mixture of two immiscible liquids can be separated. So this is separation by separating funnel. Next is separation by boiling, okay, or by evaporation. By using evaporation technique we can separate out solvent फ्रॉम द सोल्यूट. अगर सोल्यूट किसी में डिज़ोल्व हो गया है, सॉल्वेंट सोल्यूशन मैंने बताया आपको, अगर आपका सोल्यूट है, सॉल्ट है, ये अगर किसी में नॉट ओनली टेबल सॉल्ट, एनी केमिकल इफ इट गेट्स सोल्यूबल इन वाटर, इफ इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, इट गेट्स मिक्स इन वाटर, इट विल फॉर्म सोल्यूशन. ओके, तो वो सोल्यूशन में से आपको अगर आपका सॉल्ट वापस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सॉल्वेंट है वो बॉइल्ड ऑफ करना पड़ेगा, उसका इवेपोरेशन करना पड़ेगा, तो वाटर निकल जाएगा. व्हाट यू विल गेट एज अ रेसिड्यू इज योर सॉल्ट. ओके, सो दिस टेक्निक इज नोन एज आइदर इवेपोरेशन टेक्निक और बॉइलिंग. द नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन.
डिस्टिलेशन टेक्निक में क्या हो रहा है? डिस्टिलेशन टेक्निक में आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड्स है, या फिर एक लिक्विड एक सॉलिड है। चलो एक लिक्विड एक सॉलिड वाला एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास सॉल्ट है जो वाटर में डिसॉल्व है। तो बॉइलिंग वाले इसमें हम लोगों ने देखा, जब हम लोग बॉईल ऑफ कर देते हैं, जब हम इवेपोरेशन कर देते हैं, तो हमारा वाटर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, हमको सिर्फ सॉल्ट मिलता है। लेकिन अगर मुझे ये प्रोसेस में, मतलब सॉल्ट एंड वाटर वाले इसमें अगर मुझे वाटर चाहिए, ओके, इन दैट केस आई विल यूज डिस्टिलेशन। इसमें क्या होगा, आपका वाटर व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट, यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रीच्ड, एट दैट टाइम, यहाँ पे थर्मामीटर है, यहाँ पे दिखता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ रहा है। एट दैट टाइम वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पूरा ब्लॉक है, ओके तो ये इधर आएंगे, कहाँ से जाएंगे? कंडेंसर से। कंडेंसर आपका एक ग्लास ट्यूब होता है, एक्चुअली एक ग्लास ट्यूब के अंदर एक दूसरी ग्लास ट्यूब होती है, ओके तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। ये एक आपकी ग्लास ट्यूब है जो ओपन है, मतलब ये ओपन, मतलब यहाँ से जो वेपर्स जाएंगे ये अंदर वाली जो ग्लास ट्यूब है ना, इससे होते होते ये वाले कॉनिकल फ्लास्क में आने वाले हैं। और दूसरी जो ट्यूब है जो इसके बाहर है, ओके ये जो है ये यहाँ से सील्ड है, और यहाँ को इस तरफ और एक ओपनिंग है, तो ये यहाँ से सील्ड है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इनर ट्यूब। इनर ट्यूब इंटैक्ट है, जो एंड टू एंड, एक एंड इस फ्लास्क को अटैच है, दूसरा एंड इस फ्लास्क को अटैच है, और जो आउटर ग्लास ट्यूब है, ओके वो सील्ड है दोनों तरफ। ये दोनों तरफ वो आउटर वाली ग्लास ट्यूब सील्ड है, और इसको ओपनिंग साइडवेज में है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। सो एक वाले इससे वाटर इन होगा, मतलब वो हम लोग ये अटैच करेंगे ट्यूब को, ट्यूब अटैच करेंगे आपके टैप को। सो टैप से, और टैप आप जब ओपन करोगे तो वो टैप से वाटर जाएगा ये आउटर ट्यूब में, वो इनर ट्यूब के साथ मिक्स नहीं होगा, वो आउटर ट्यूब से पूरा ऐसे गोल 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 इनर ट्यूब के गोल गोल घूमते हुए दूसरे आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। Okay, so what that water is doing, that water is acting as a cooling agent, और वो क्या कूल कर रहा है, ये जो अंदर से आपके वाटर वेपर्स जा रहे हैं ना, उनको कूल करके फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स बना रहा है, जो वाटर कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बिकॉज इट इज ओनली H2O, no dissolved salt, no dissolved minerals, nothing, it's pure H2O. This is known as distilled water and the process is known as distillation. आ गई बात समझ में? तो ये मिक्सचर अगर आप कौन सा कुछ भी इसमें मिक्स्ड है, फूड कलर मिक्स्ड है पानी में, आपके सॉल्ट मिक्स है, कुछ मिनरल्स है, कुछ डर्ट है, कुछ जर्म्स है, anything is there, at that case what you are getting the pure form of water, only H2O, which is known as distilled water, क्योंकि at its temperature only that will evaporate. ओके अगर इसमें अल्कोहल है तो सबसे पहले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है, तो अल्कोहल पहले, इसीलिए यहाँ पे थर्मामीटर अटैच किया हो, पहले अल्कोहल विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, उस टाइम उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, इट कैन कैच फायर। ओके सो इसको ऐसे वाटर बाथ में रखते हैं, यहाँ पे वाटर डाल के वो वाटर बाथ को हीट करते हैं। Okay, so in that case first alcohol will evaporate, it will be collected in the first conical flask and then alcohol का boiling point के ऊपर भी temperature चला गया, अभी कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब alcohol ख़त्म हो गया है मिक्सचर में का, तो वो बीकर निकाल लेंगे और दूसरा बीकर, दूसरा कंडेंसर लगा के फिर वाटर निकालेंगे अलग से। ओके सो जो कुछ और भी उसमें डिज़ोल्व था वो यही रह जाएगा। ओके सो दिस इज अबाउट डिस्टिलेशन टेक्निक। फिर देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके सेंट्रीफ्यूगेशन बताने के पहले आई विल टेल यू, सब लोगों ने वॉशिंग मशीन देखा है घर में, तो वॉशिंग मशीन के टब को
थोड़े होल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कपड़े स्पिन करते हैं ना, जिनके घर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगा, एक ही टब होगा, उसको होल्स होते हैं, ओके। और जिनके घर 2 टब वाली मशीन है, तो जहाँ पे हम लोग कपड़े स्पिन करते हैं वो वाले टब को होल्स होते हैं। एंड इफ़ यू हैव ऑब्जर्व कि जब हम लोग कपड़े ड्राइंग के लिए लगाते हैं, जब मतलब जब स्पिनिंग हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है, तो इतना फास्ट ड्रम घूमता है, और उसके बाद जब वो स्टॉप होता है, मैनी टाइम्स वो ड्रम को चिपके हुए होते हैं कपड़े, राइट। सो वो जो फास्ट स्पिनिंग मोशन हो रहा है, ओके, वो जो फास्ट स्पिनिंग मोशन हो रहा है, उसके वजह से कपड़े क्या हो रहे हैं, बाहर फेंके जा रहे हैं। और कपड़े तो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि होल्स बहुत छोटे हैं, लेकिन कपड़ों में से पानी वो होल्स से निकल जाएगा। दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मीन्स एब्सेंस ऑफ फोर्स एट द सेंटर। सो फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और आउटवर्ड डायरेक्शन में जब लगता है तो वहाँ बाहर फेंकने का, गिरने का ऐसा फीलिंग आता है। तो उसके वजह से, वो फोर्स की वजह से सब पानी क्या होता है, निकल जाता है आपके टब में से बाहर। अभी ये हो गया आपके गीले कपड़े का एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेती हूँ, सपोज ब्लड लिया मैंने, अरे क्या हो गया इसको, अगर मैंने इसमें ब्लड लिया, फाइन। सो ब्लड में क्या है, मेरे प्लाज्मा है, मेरा मीडियम है, उसमें सस्पेंडेड है मेरे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, हर एक का अपना वेट है, अपना साइज है, ओके। तो जब मैं ये घुमाने लगती हूँ बहुत स्पीड से, ये मेरा वॉशिंग मशीन टाइप एक स्पिनर है, रोटर है, इसको एक ऐसा डिस्क रहती है, डिस्क को होल्स है, टेस्ट ट्यूब के स्लॉट्स है, होल्स में से टेस्ट ट्यूब डालो, स्लॉट्स है उसके, ओके। और ये घूम रहा है, मैकेनिकल भी होता है, हाथ से करने वाला भी होता है। और ये जब स्पीड से घूमता है तो ये जो छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, बाहर फेंके जाएंगे, ओके। तो ये टेस्ट ट्यूब्स से जब घूमता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मैकेनिकल में हॉरिजॉन्टल हो जाती है, यहाँ पे ऐसे टिल्टेड पोजीशन में रहती है। तो वो क्या होता है, जब बाहर फेंके जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जब फेंका जा रहा है ये, तो ये क्या हो रहा है, सेटल हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो आपके हेवियर पार्टिकल्स, आपके आरबीसी सेटल होंगे एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और प्लाज्मा हो जाएगा ऊपर, ओके। तो ऐसे डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सेपरेट करते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथडोलॉजी, ओके। आपने पानी लिया, पानी में थोड़ा चारकोल डाला, उसको मिक्स किया, चारकोल थोड़ा सा सेटल होता है, थोड़ा सा सस्पेंशन फॉर्म में रहता है क्योंकि सोल्यूबल तो है नहीं, ओके। फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज में डालो और रोटेट करो, तो पूरा चारकोल क्या हो जाएगा, ऐसा सेटल हो जाएगा, ऐसा सेडिमेंट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने सेडिमेंटेशन का टेक्निक देखा था, तो सेडिमेंटेशन में पार्टिकल्स इतने हेवी है कि ऑटोमेटिकली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेटल्ड हो जाते हैं। यहाँ पे इतने हेवी पार्टिकल्स नहीं है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन उनको अलग अगर करना है हम लोग को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे से स्पिन करना पड़ेगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बाहर फेंके जाएंगे, और जब हम लोग वो वर्टिकल पोजीशन में लाएंगे टेस्ट ट्यूब, तो वो सारे क्या होंगे, नीचे होंगे। दिस मेथडोलॉजी इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, okay. Now next, chromatography. Chroma means color. So when you have a mixture of colors, okay, and you want to separate it on a graph, you get a beautiful graph of color, ऐसे different colors separate होते हैं आपके पेपर के ऊपर। फिल्टर पेपर का अगर आप स्ट्रिप लेते हो तो उसके ऊपर सेपरेट होंगे सारे कलर्स, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो अगर मैंने लिया एक ब्लैक इंक का स्पॉट देती हूँ मैं यहाँ पे, और ये फिल्टर पेपर को मैं बीकर में पानी लूँगी थोड़ा सा, और ऐसा डिप करना है कि दैट दिस स्पॉट इज़ नॉट इमर्स्ड इन वाटर। अगर ये पानी में इमर्स्ड होता है तो इट विल गेट वॉश्ड आउट, ओके। सो इतने लेवल तक ही करना है, वो जो नीचे है ना, यही लेवल तक करना है आपको वो स्पॉट, ओके। वो फिल्टर पेपर की स्पॉट के नीचे वाटर का लेवल हो,
और धीरे धीरे वाटर क्या होगा, राइज होगा वो फिल्टर पेपर पे, और जैसे जैसे वाटर राइज होगा वैसे वैसे क्या होंगे, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर सेपरेट होंगे। अगर आपको पास फिल्टर नहीं है तो you can do it on a chalk. It is readily available in the market. Black ink, you already must be having some black marker or something. You can put a spot of black marker on a chalk and put the chalk in water, and you can see the separation of color. That is the simplest chromatography प्रोसेस, ओके। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे जब कुछ इम्प्यूरिटीज़, कुछ अडल्ट्रेशन चेक करना है या फिर कुछ पॉइजनस थिंग्स है फूड के सैंपल में, फॉरेंसिक लैब में चेक करते हैं कि फूड के सैंपल में कुछ पॉइजन है नहीं है, इसके लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज़ होती है। लेकिन इट इज़ द सेम कि स्पॉट दिया जाएगा, सॉल्वेंट में रखा जाएगा और रन किया जाएगा, तो यू विल गेट सेपरेशन, ओके। इट्स का सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यू स्टडी इन हायर क्लासेस, नॉट नाउ, बट दिस इज़ द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन फॉरेंसिक लैब्स, ओके। और इसके काफ़ी सारे टाइप्स है। ये तो सिंपल पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होता है, फिर आपका सिलिका जेल क्रोमेटोग्राफी भी होता है। तो बहुत बहुत टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी के और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। सो दिस इज़ द एकदम बेसिक वाला ये एग्जाम्पल है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेथड टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर. Yes, so this is the last methodology. We have seen so many techniques: filtration, sedimentation, then chromatography, centrifugation, sublimation, distillation, winnowing, throwing, hand picking. बहुत सारे examples हम लोगों ने देखे separation of mixtures के. Why we use them? To get pure constituent substances back. Okay. So this is all related to this lesson, that is elements, compounds and mixtures, okay. That's the end of the lesson. For more videos, please subscribe to Science at Click. Thank you.